Islam and living his body vision. The command of obedience is also explained in Surah Nisa. So get ready. So the students of standard 3rd are now going to perform a skit which will explain the importance of obedience. Please. Ibrahim is the class leader of standard 3rd. The teacher was very particular that everyone should attend the prayer in the morning. This in case of severe punishment. One day Ibrahim fights a young that has not attended the prayer. Ayan, why did you skip the prayer? You know, your teacher is very strict about it. Teacher enters the class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Please, words and blessings of Allah be on you. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace, mercy and blessings of Allah be on you. Sit down. Ibrahim, did you attend the prayer today? Just accept Ayan, everyone come for the prayer. Go sit down your place. Jazakallah. Ayan. What Ayan? Is that true that you stayed away from the prayer? The whole class is eagerly waiting to see Ayan being punished. All in the class except few are very jealous of Ayan, who studies well, behaves well, speaks well. His handwriting is neat, he keeps his books neat. Ayan, you know, whoever misses the prayer, he will be punished. But before giving you punishment, I would like to know why you stayed away from the prayer. I came to the class on time only, but the others are already gone for the prayer. So I kept my bag inside the classroom and about to go. But I noticed that the whole classroom was full of chambers, dust and rubbish and what not. The whole classroom was dirty and unhygienic. The boy you only thought as teacher, kullu ma'rufin sadaqatun. The every good action is kind of charity. The boy who was in charge of the cleanliness in the classroom did not do its duty. So I cleaned the classroom and failed to attend the prayer. Since you have taught us the unity of labor, if I have done something wrong, please punish me, teacher. I am ready to accept any punishment from you. MashaAllah, Ayan, you have done a wonderful job. If everyone thinks Sanax and your views, our school will become very famous. I am very proud to have you as a student. There is no punishment for you. You also gave an example of inna min kiyarikum ahsanakum akhlaqa. The best among you is one who has excellent conduct. He was highly appreciated by the teacher, who appoints a grade out of Ayan as a model to be followed by all the students. And you have taught us an example of inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. The best among you is the one who has excellent conduct. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Teachers and ustads are the role models of our life, and we should obey and respect our teachers for a better life.
Hadith. Saying of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-mar'u ma'a man ahabba. The Prophet asked Muhammad sallallahu alayhi wa sallam that one will be adjust along with him whom one love more. Kullu ma'rufin sadaqah. Every good is charity. La yadkhulul jannata nammamun. One who backbites not enter paradise. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. The world is a prison for a Muslim and paradise for a disbeliever. Man la yarhamu la yurham. One who does not have mercy on others will be not shown and immersed in plastic. The biggest issue on which many questions and problems have arisen in the last few months was say no to plastic. The situation really had created ignite among people, but truly it was a right step to stop environmental pollution. So here comes the students of Standard Third Start to present a skit on say no to plastic. Assalamualaikum. A very peaceful morning to one and all. Do you know me? You must be thinking, who am I? I will introduce myself. I am your old friend. Now you must have guessed me. I am famous in today's world. Hey Simran, where are you going? How are you? Have you came to market? Alhamdulillah, I am fine. Yes, I have came to market to buy some veggies, but the grocer have troubled me. He is not here. Big carry bag only. Oh Simran, you don't know that plastic carry bags are banned in Chitloor. I think you have not been market since Monday. Thanks for saying this. But for your kind information, I had been to Qatar. It's been 2 days. I had been came back from Qatar. Oh, I see. Okay, take care. I have to leave for the road. Who is she? The blue man one? But the way is good. The poly bags are bad. I think plastic bags are making mess in society. By the way, she must not be knowing. According to research, salt contains 60% plastic and banned. What rivalry she has with me? That she is backbiting me. Scene 2. Conversation between mom, daddy and 2 young granddaughters. Scene 2. Conversation between mom, daddy and 2 young granddaughters. Mom, can I go to market? Why you want to go to market, beta? I have to buy some clothes for tailor. Okay, take care and come soon. After some time, mom returned back home. Oh, Rita, you're back. You got children soon? Yeah, I got, but I gave them only. How will I say? There is no more humanity left in people. Neither the clothes shopkeeper was ready to give me polybag, not the other shopkeeper. Yeah, Allah. What kind of people are there in this world? Look at these people, how tense are they? They cannot do anything without me. I have become the most important thing for them. Wow, I have become famous in this world. What happened now? Why so disturbed? Nothing. You won't understand it. No, I listen everything. Angry because polybags are bad. Yes, beta, I am pizza because of this polybag. Mom, don't be upset. You know what in the school teacher told us today that polybags are very harmful. Every minute, 1 million people make use of polybag and 1 plastic is used in a year.
Even the crows are getting disturbed because of this holy bag. You could remove my bag. No, I do not do such things. People are simply spelling my name. Oh, Safa, what's so special today? Mom is spending much time with you. This Peter Pushpa, thank God, Safa gave me important information about polybag. Otherwise, I, the only one, was pushing my family toward danger. Mom, what's Safa important information to you? You are thanking her so much. Hey Pushpa, why are you taking this from Safa? Isn't your mom or sister in your matter than Safa? Okay, then tell me also. Beta, Safa told me how harmful plastic is to us, and she said me to avoid the use of polybag. Also, that's the matter. Yes, my friends are discussing the same topic. Is that so? Mom, do you know, I have understood that plastic is harming our society as it contains harmful gases like nitrogen dioxide. No. Yes, Mom, I also got shocked after listening to this. I was also going to inform you about them that women avoid using polybags. Yes, my daughters have become so much old. Look, Mom, my daughters have taught me a good lesson. Arey, what is happening? First, people get from beside me. Now they are back up destroying me. Help me, please help me. Oh, little plastic will keep crying forever. आओ आज हम सब मिलके ये अहद करते हैं कि हम प्लास्टिक को हमारे घरों से निकालेंगे और अपने माहौल को इस तरीके से आजाद करेंगे इंशाअल्लाह। Polybag here and there. Polybag everywhere. In the water, up in the air, on the roads and everywhere. They never die, their number rise. They harm our earth, they harm our life. So say no to polybag. So say no to polybag. अब से हम बस एक बात ध्यान में रखेंगे, स्वच्छ भारत सुंदर भारत, स्वच्छ भारत सुंदर भारत। Oh yeah, I was not knowing that plastic can cause so much harm. Jazakallah to all the students who have made us aware of this. To save the earth, let's use a plastic bag now. Say no to plastic but be fantastic.
عزت کی زندگی دے احساس بندگی دے دنیا کی ظلمتوں سے ہم کو بچانے والے بس تو ہی تو رہے گا ہم آنے جانے والے اللہ بہت بڑا ہے 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 باقی کہا مسکرا دیتی ہوں میں اور یاد آ جاتی ہے ماں اور یاد آ جاتی ہے ماں A mother's love for a child is like nothing else into the world. It knows no love, no pity. It dares all things and crushes down remorselessly all that stand in its path. So as Keith, you perform my rules of standard food culture, pays tribute to all the mothers who unconditionally love their children. Peace, mercy and blessings of Allah be on you. Ruby, what are you doing? You even haven't been at your president. We are never going to get you off. You are college. You don't get to teach doctor. Sorry, Mom, I got distracted. Do you remember this? Wow, these are from quite a while ago, aren't they? I owe you 75 cents for a Coke. I owe you $1 for an ice cream cone. I owe you $2 for an set of parrots. These are the IOUs you wrote me back when we gave an allowance. Yes, I would spend my all allowance money and then want something else. You would not give me any more money until I wrote out an IOU. I guess I did not pay many of them back. Did I? Actually, you paid more back than I ever expected. I remember being so proud. Each time I paid one back, I would hand you the IOU and the money, and you would then say, "This IOU is paid in full." I was proud of you. I was trying to teach you to be responsible with your money, and every time you paid me back, I thought the lesson had sunk in, at least a little. So this is what I've been distracting you? Not really. When I found all those IOUs at the bottom of my dresser drawer, I felt like I have to write one more. Here, read this. Dear Mom, I owe you for following services. Janitorial, you washed our bedroom, picked up after me, and dealt with my mess for 18 years without a single thank you from me. Recreational, you made this house fun, happy, safe place for me and my friends, even the ones who didn't like very much. Psychological, you gave me great advice that I could not get anywhere else. Even though I did not always listen, I know now how valuable it was. Every movement. You kissed away every movement. I ran my hand through nuts that I thought I was too sick, and then feel better than the best of in the world. Emotional, you rejoiced with me in the happy times and cried with me in the sad times and carried me through those times I could not have made it on my own. You showed me the kinds of unconditional love that Allah has for me
Without your example, I don't think I would have ever come to realize that how much he loves me. In short, Mom, I owe you everything. Well, I guess it's time to collect on this one. What? I can't possibly pay you back for all of that. Of course, you can. I love you, Mom. This I do is paid in full. Assalamu alaikum. Well, truly, to all the mothers, we really owe you for everything. To the soldiers, अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया. अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया. जान हथेली पर रखकर देश की हिफाजत को अपना मकसद बना लिया. अपना मकसद बना लिया. These are our paid soldiers. So to pay tribute to the soldiers of our nation, Boys of Standard 3rd Alpha will perform an action song. So please welcome them on stage. हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों, ढूंढ लेंगे हमें शाहजहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों. हम कदम, हम ज़हन, हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों, ढूंढ लेंगे हमें शाहजहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों. मेरे जज्बों में कासिम की ललकार है, मेरी कुव्वत भी टीपू की तलवार है. मेरे जज्बों में कासिम की ललकार है, मेरी कुव्वत भी टीपू की तलवार है. मेरी हर सांस कर्ज़े अज़ा दोस्तों, मेरी हर सांस कर्ज़े अज़ा दोस्तों. हम कदम, हम ज़हन, हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों, ढूंढ लेंगे हमें शाहजहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों. मेरी नस नस में कलमा है ईमान का, हम पे हर लम्हा साया है कुरान का. मेरी नस नस में कलमा है ईमान का, हम पे हर लम्हा साया है कुरान का. हासिले इल्म हो बेकरार दोस्तों, हासिले इल्म हो बेकरार दोस्तों. हम कदम, हम ज़हन, हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों, ढूंढ लेंगे हमें शाहजहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों. तोड़ लाएंगे हम चांद तारों को भी, होगी जब साथ में इल्म की रोशनी. तोड़ लाएंगे हम चांद तारों को भी, होगी जब साथ में इल्म की रोशनी. तुम न करना ये वक्त ज़िया दोस्तों, तुम न करना ये वक्त ज़िया दोस्तों. हम कदम, हम ज़हन, हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों, ढूंढ लेंगे हमें शाहजहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों. आसमानों तलक मेरी परवाज़ है, पर्वतों पर मेरे हक की आवाज़ है. आसमानों तलक मेरी परवाज़ है, पर्वतों पर मेरे हक की आवाज़ है. हम सितारों के हैं राज़दार दोस्तों, हम सितारों के हैं राज़दार दोस्तों. हम कदम, हम ज़हन, हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों, ढूंढ लेंगे हमें शाहजहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों. इल्म की राह का अब सफर है शुरू, खत्म होगी कभी इनकलाबे जुनून.
खत्म होगी कभी इनकलाबे जुनूं, कश्तिए इल्म के बाद दोस्तों, कश्तिए इल्म के बाद दोस्तों, हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों, ढूंढ लेंगे हम ऐसा जहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों. All the soldiers and pay tribute to them. Let's move forward and be ready to listen the reason of entering paradise. We all are aware about the paradise. In Islam, Jannah is the final abode of the righteous and the Islamic believers, but also the garden where Adam alayhi salam and Hawa alayhi salam dwelt. I would now like to call upon students of Standard 4 to put some light on the reason of entering paradise. To study and express my views in such of a beautiful audience, I would like to speak few words on the topic reasons for entering paradise. Death is about to come to everybody, and Muslims are facing one terrible threat. In fact, our situation is critical and no one can predict what will happen tomorrow. Dear brothers and sisters, the first matter about the entering the paradise is to have proper aqidah, Islamic creed, and valid righteous is. Whoever follows the way will reach the paradise, and while his aqidah is incorrect, will fail to enter there. Verily, faith alone does not take to paradise, because Allah the Almighty had not mentioned faith without having accompanied it with the righteous deeds. Al-Nasai reported in Al-Sahih Jami that the Prophet, peace be upon him, said, Allah only accepts the deeds when it is of pure faith and done for his sake only. There are many reasons for being admitted to the paradise. The first one is righteous deeds. The second one is taqwa, which some scholars have defined as to fear majesty and to work according to the Quran and to follow the Sunnah and to prepare for the day of the judgment. Allah the Almighty says, be quick in the race for forgiveness from your Lord. In Sahih al-Bukhari, Abu Hurairah transmitted that the Prophet, peace be upon him, said, all of Ummah will enter the paradise except those who refuse. They asked him, O Messenger of Allah, who will refuse? The Prophet, peace be upon him, said, those who are obeyed me will enter the paradise, and those who have disobeyed me will be refused. The second reason is jihad. In the way of Allah, the furthermore reasons for entering the paradise is repentance. Ibn Majah reported that the Prophet, peace be upon him, said, he who repents of a sin, he who has committed no sin. O Allah, please lead us to the good deeds and show your strength against your enemies. Amin. Assalamu alaikum. माशाअल्लाह. तुम्हाला कल्पना असेलच की हास्यातून स्वास्थ्य कसं साधता येते. आज आम्ही कामाचे ओझे तेवढे झरपून गेलो आहोत की आम्हाला स्वतःच्या विषयी विचार करायला वेळच राहिलेला नाही. आज आमच्या या चिमुकल्या विद्यार्थी आपल्या सगळ्यांच्या स्वास्थ्याची काळजी घेऊन आपल्या विचारांना या संवादाद्वारे कसे सादर करतात ते पाहूया. वाचा फोडा, अन्याय याला वाचा फोडा, अन्याय फोडा. अगं सॉरी अन्याय नुसता अन्याय होता आपल्यावर. आपण लिहिलं करायला बाईला कधीच पडत नाही. हो, त्यांना कळले असेल माझ्या अंगात सी विटॅमिन कमी आहे म्हणून ते मला नेहमी सिगरेट देतात. आता झाली की नाही परीक्षा? हो, त्याचा काल निकाल लागला. काय मिळाले मग? मोठा भोपला. का? हे बघ, त्यांच्या मनाचा प्रश्न येतील तर आपल्याला विचारते. मग आपल्या मनात आलेलं उत्तर आपण लिहिलेलं त्याला चालत नाही. म्हणजे हे बघ, मला एका प्रश्नाचे उत्तर अर्धच देत होते पण मी अर्धच लिहिले. कोणता प्रश्न होता तो? त्यांनी विचारले, न्यूटनचा नियम कशाला म्हणतात? मी लिहिलं, याला न्यूटनचा नियम म्हणतात. अय्या, तुझे
तर बरोबर होतं की त्याचं निम्मे तरी मार्क घ्यायचे. पण ते त्यांना पटत नाही ना. गणिताच्या पेपरामध्ये असा त्रिकोण काढला होता आणि सांगितले होते या त्रिकोणाला कर्ण काढा. मग तू काढलास? नाही, मी सरळ सरळ लिहिले. मी त्रिकोण काढला नाही, मी कर्ण काढला नाही. मग बघितलास माझा पाणीदारपणा. मग तुला याच्यासाठी बिग ग्रेड मिळायला पाहिजे होता बाबा. हो, पण ते त्यांना पटत नाही ना. माझ्या आईने माझ्याकडून एक मन पाठ करून घेतले. नाचता येणार अंगण वाकडे. हो, मराठी पेपरला प्रश्न आले मग मी पूर्ण करा. तर आलेले देव तरी त्याला टिंब पाखे करता टिंब असेल माझा हरिता टिंब. मग लिहिलं. मग मी पाठच मग मी लिहिलं. देव तरी त्याला अंगण वाकडे काखे करता अंगण वाकडे असेल माझा हरिता अंगणवाकडे. किती छान. पण ते त्यांना पटत नाही ना. काय ते कोणता तरी पेपर होता, त्या प्रत्येक पेपरामध्ये विचारतात कोण कोणास म्हणाले. आपल्याला काय करायचे, कोण कोणाला काहीही म्हणू दे, आपण चुकल्या करत नाही बुवा. आईने सांगितलंय कोण कोणाला काहीही म्हणू दे, आपण काही सांगायचं नाही. हो, ही बरोबर आहे. मोठ्यांनी सांगलेला नेहमी ऐकत असतं. हो, पण ते त्यांना पटत नाही ना. हे बघ, त्यांचं एकदम वेळ जात नाही म्हणून ते आपल्याला प्रश्न विचारतात. कारणे द्या. त्यांनी मला प्रश्न विचारले, प्रकाश नेहमी सरळ रेषेत प्रवास का करतो? का करतो म्हणजे त्याला लहानपणापासून त्याची सवय असेल. आपली सगळी उत्तरे बरोबर आहे, पण ते त्यांना पटत नाही ना. मला तर वाटतं आपण शाळा जायचं लेवलच नाही आहोत. म्हणजे आपण डायरेक्ट कॉलेजला गेलो पाहिजे. माझी टीचर तर म्हणतात मी तुझ्या पुढे हात जोडते, तू परत परीक्षेला बसू नकोस. तुला शिकवणे म्हणजे माझा अकलीचा पलीकडचे आहे. आहात तर आपण कधी ग्रेट. हो, पण ते त्यांना पटत नाही ना. आणि आता तुम्ही सुद्धा स्वतःकडे एक पाऊल टाका. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी हजरात का और कमेटी का, मेंबर्स का, स्टूडेंट्स का और टीचर्स का कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने अच्छा बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे किया और बच्चों ने भी अच्छा परफॉर्म किया. सर वक्त की कमी की वजह से मैं अपनी बात बहुत जल्द ख़त्म करूँगा. मैं जो कहना चाहता हूँ वो है जो है इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन. अगर देखा जाए तो जो है हमारी कम्युनिटी में एजुकेशन का जो मैर होना चाहिए, जो परसेंटेज होना चाहिए स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी में उतना है ही नहीं. और एक बहुत पॉजिटिव है कि कोंकणी कम्युनिटी में पहले से थोड़ा अवेयरनेस है एजुकेशन के बारे में, लेकिन जो है हमारा अवेयरनेस जो है वो सिर्फ 12th स्टैंडर्ड तक है. हम जो है सोचते हैं कि जो है ना बच्चा अगर 12th तक पहुंच गया तो जो है उसने बहुत कर लिया और उसके बाप या बड़े भाई या अंकल मामू जो भी है वो गल्फ में काम करते हैं, वहाँ से वीज़ा आ जाएगा और चला जाएगा. ठीक है, ये जो है हमें माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा. अगर आप देखें तो हमारी कम्युनिटी से बहुत ही जो है कम लोग हैं जो कि एक स्किल्ड इसमें मतलब अपना नाम रखते हैं. जैसे भी मुकादम साहब जो है पायलट है, ऐसे बहुत सारे अभी यहाँ पे लाइफ केयर में कुछ डॉक्टर्स हैं. लेकिन जो है अगर ओवरऑल कम्युनिटी को देखा जाए तो जो है हमारे इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है कम्युनिटी में कि हमारे इंजीनियर कम हैं, डॉक्टर कम हैं, क्योंकि जो है हमारे पास में जो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें लगती हैं वो बहुत कम है. और दूसरा जो है करियर गाइडेंस जो है वो कम होने की वजह से आई थिंक ज़ीरो ही है, क्योंकि मैंने आज तक कभी सुना नहीं चिकलन में कोई जो करियर गाइडेंस हुआ. तो उसकी वजह से जो है पेरेंट्स को जो है अपने टीचर अपने बच्चों को जो है आगे 10-12 के बाद में कौन सा फील्ड में डालना है इसके बारे में जो है बहुत कम नॉलेज रहती है. तो जो है या तो कॉमर्स में चला जाता है, साइंस बहुत कम चले जाते हैं, आर्ट्स या कोई इंजीनियरिंग इधर उधर चला जाता है. लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फील्ड है जो कि हमको पता नहीं है. तो जो है
मेरी अभी तो ये स्कूल जो है अभी 5th तक है, लेकिन फिर भी मेरी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो आगे चल के जो है जब ये 10th 12th तक पहुंच जाए इंशाल्लाह, तो जो है एक स्किल गाइडेंस या करियर गाइडेंस का जो है उसको ऐसा क्या कहेंगे जैसे मेले लगते हैं वैसा होना चाहिए, ताकि जो पेरेंट्स को जो है ना वो बच्चों को उस लाइन से प्रिपेयर करने के लिए उस जो है उनकी हेल्प हो। और जैसा कि जो मैंने चिकलूर में और एक स्कूल में बात की थी एक दो तीन साल पहले, IAS की एग्ज़ाम जो होती है UPSC बोर्ड की जो है, उसमें जो है अगर आप देखा जाए तो जो कोकन बेल्ट से जो है आई थिंक 2 या 3 जो है IAS ऑफिसर, एक चिकलूर से है जो जोशी डॉक्टर की लड़की है, और मुझे लगता है देवदर की लड़की भी कुछ IAS ऑफिसर है, ठीक है। और फिर जो है देखा जाए तो उसमें चिकलूर से कोई जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि चिकलूर में पहली बार इनफैक्ट कोकन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में जो है कोई IAS जो IPS या इसके लिए जो एग्ज़ाम्स होती है उसके लिए प्रिपरेशन होता है ऑल ओवर इंडिया से, उसके लिए जो कोई क्लासेस नहीं है, गाइडेंस नहीं है। मैंने एक स्कूल में बात की थी 2 साल पहले, लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं और उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। मेरी खालिद भाई से रिक्वेस्ट है कि जो है 8 से जो है ना इसकी पढ़ाई शुरू होती है, 8th स्टैंडर्ड से एक्स्ट्रा लेक्चर लेके जो है ना वो बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल बोर्ड से होती है दिल्ली से और ऑल ओवर इंडिया में होती है। 350-400 बच्चे जो इसमें सिलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद में जो है वो पोस्टिंग सेंटर से ही होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, कलेक्टर हो गए, ये वगैरह जो है IPS जो है जो आपका पुलिस अहदे में जो है उसमें आपको पोस्टिंग मिलती है। तो वो हिसाब से जो है ना इंशाल्लाह मेरे पास में जो है उसके मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो IAS ऑफिसर्स हैं और वो गाइड करने के लिए तैयार थे, उस वक्त भी तैयार थे 2 साल पहले, अभी भी तैयार है। तो अभी 5वीं हमारी स्कूल जो 5वीं तक है, तो अभी वो बच्चों को इतना ये नहीं है। जब 8वीं तक जाएगी तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं भी आपके से कांटेक्ट में रहूँगा। इरादा है कि जो है हमारे यहाँ पे नॉट ओनली फॉर अली पब्लिक स्कूल बट ओवरऑल चिकलूर के लिए एक ऐसी क्लासेस हो जहाँ पे जो है बच्चों को IAS के लिए प्रिपेयर किया जाए, ताकि जो है आगे जाके वो जो है ना उनको, क्योंकि जनरल नॉलेज की वो होती है फील्ड होती है, तो उसमें बहुत बार अटेम्प्ट करना पड़ता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, 3-4 अटेम्प्ट तो उसमें लगते हैं। तो वो जो बाय द टाइम वो आगे BSc कर रहे हो या BCom कर रहे हो, तो जब तक उस वक्त तक वो तैयार हो जाएंगे एग्ज़ाम्स के लिए 1-2 बार भी बैठ भी सकते हैं, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, क्योंकि 50 तक भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं उसके लिए। और क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स जो है तो बिहार से अगर आप देखा जाए तो IAS ऑफिसर सबसे ज़्यादा इंडिया में बिहार से, जबकि उनका एजुकेशन लेवल एकदम लो है। तो मैंने अपने फ्रेंड से भी बात की कि यार तुम लोग को सीधा इंग्लिश बोलने नहीं आती और तुम्हारे पास में इतने IAS ऑफिसर है, तो उन्होंने कहा कि जो है हम जो है ना हायर एजुकेशन में नहीं जाते, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम बिहार जो यूनिवर्सिटी से अगर इंजीनियरिंग भी करें तो हमको कहीं जॉब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कॉपीज वगैरह जो है वो ओपन होती है, ठीक है। तो उनको पता है कि ये अगर हम डिग्री भी लेंगे तो हमको कोई जॉब देने वाला नहीं है। तो उनके स्कूल से जो है 8 से जो है ये इसकी एग्ज़ाम्स की शुरुआत होती है, प्रिपरेशन होते हैं, प्राइवेट लेक्चर्स भी होते हैं, स्कूल में भी होते हैं। तो उनको पता है कि इसमें अगर पास हो जाएंगे तो श्योर शॉर्ट जॉब है, अच्छी पोस्टिंग मिलती है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जा सकते हैं। तो जो है वहाँ इसके लिए बिहार से सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह अपने स्कूल में अभी 3 साल तो है बाकी इंशाल्लाह, तो अगर मैनेजमेंट अगर स्कूल में इंटरेस्ट ले रही हो तो इंशाल्लाह मैं ये सारे IAS ऑफिसर्स को अरेंज कर सकता हूँ, ताकि गाइडेंस भी हो पेरेंट्स को कि आगे अगर हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना है तो इंशाल्लाह उसमें जो है स्कूल की तरफ से पूरा कोऑपरेशन रहेगा। मेरी तरफ से जो है जितना भी हो सकता है मैं इंशाल्लाह अगर इंडिया में उस वक्त नहीं रहा या तो फिर मैं भी आपको कांटेक्ट नंबर देके जाऊंगा उन लोगों के, आप जो है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो है ताकि जो है हमारा जो है ना मेन पॉलिसी मेकिंग में हमारा रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं है, जहाँ से मेन पॉलिसी बनती है गवर्नमेंट से वहाँ पे जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन 0 है। तो अगर हमारे लोग वहाँ पे रहेंगे तो जो है हमारी कम्युनिटी के हिसाब से पॉलिसी बनेगी, तो जो है बाकी हमारा फिर जो रोना धोना है वो तो और बात है, क्योंकि हम कहते हैं हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमारे एजुकेशन में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आगे हमारा उससे कुछ नहीं हो सकता। तो जो है इसके लिए आप भी पेरेंट्स भी है जो है ना वो टाइम टू टाइम स्कूल मैनेजमेंट के साथ में जो है कांटेक्ट में रहिए इंशाअल्लाह।
2-3 साल के बाद में हो जाएगा शुरू इंशाल्लाह, अगर खालिद भाई का साथ का कल इंशाल्लाह, ठीक है। और जो है मेन जो है एजुकेशन में औरतों का हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो है मर्द का दीन जो है घर की चौखट तक है, और जो है औरतों का दीन जो है घर में चलता है। होम मिनिस्टर तो जो है मर्द जो है अपने जॉब से बाहर रहते हैं, तो बच्चों की जो मेन जो तरबियत होती है औरतों की वजह से होती है। अगर औरत जो है अच्छी वेल एजुकेटेड रहेगी तो बच्चों को भी वो की पढ़ाई लेती रहेगी। ट्यूशन जैसे हर भाई ने कहा था कि जो है आजकल ट्यूशन का ये है, तो जो ट्यूशन कम होगी तो बच्चे घर में रहेंगे, और जो माँ जो है बच्चों को जिस तरह से पढ़ा सकती है उतना टीचर नहीं पढ़ा सकता। तो जो है हमें जो है ये कंसेप्ट निकाल लेना चाहिए कि जो है औरतें पढ़ेगी क्या करेगी, जो है बाद में जो है घर में खाना ही बनाना है, उनको भी पढ़ाओ और जो है शरीयत की हुदूद में पढ़ाओ, ताकि जो है वो हमारा जो है एम जो हो जॉब का नहीं हो, ये है कि हमारा जो है नेक्स्ट जनरेशन जो है वो किस तरह जो है एक अच्छे इंसान बने, वेल एजुकेटेड बने, ठीक है। तो जो उसमें औरत का सबसे ज़्यादा हिस्सा होगा इंशाल्लाह। तो जो है हम जो है हमारी बच्चों को, स्पेशल बच्चियों को पढ़ाई में ध्यान दें, ठीक है, और उनको अच्छे से पढ़ाएं, जो भी है वो डॉक्टर बने, BA बने, CA बने, इंजीनियर बने, जो भी वो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़े अपने जो शरीयत की हुदूद में, और जो है ताकि जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो है ना इंशाल्लाह अपनी जो है अच्छी पोजीशन में होगा। और मैं थोड़ा नर्वस हूँ इसके लिए, थोड़ा क्योंकि मैंने कभी बात नहीं की, तो माफ़ी चाहता हूँ अगर कुछ आपकी खिदमत में लगा हूँ। इस पेड़ का साया मेरे बच्चों को मिलेगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद काबिल एहतराम और आदिल का अज़ीम अगर कोई है तो माँ बाप है, इसका कोई नेअमत बदल नहीं। वालिदैन की दुआएं हैं तो औलाद की मुश्किलात को आसानियों में और मुसीबतों को राहतों में बदल देती है। औलाद को चाहिए वालिदैन का हर तरह से कहना माने, क्योंकि उनकी फरमाबरदारी में ही दुनिया और आखिरत की भलाई और अल्लाह की रज़ा पोशीदा है। मगर आज हमारे समाज और मुआशरे में बहुत सी बुराइयाँ जड़ पकड़ रही है। उन्हीं में से एक बुराई माँ बाप से बेरगबती और बदसलूकी है, जो नई नस्ल के लिए क़यामत से पहले क़यामत सुगरा का एहसास दिलाने वाली है। इन्हीं सब बातों को उजागर करने के लिए पेश एक ड्रामा वालिदैन के साथ हुस्न सलूक तू तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे आरिफ भाई कहाँ गए थे? बहुत दिनों से मुलाकात ही नहीं हुई, कौन से गाँव में छुप गए थे? सब खैरियत तो है? अरे भाई वैसे तो कुल मिलाकर सब खैर है, लेकिन घर में जो बड़ी भी है ना उनसे बड़ा परेशान हूँ। क्यों भाई, क्या बात हो गई बड़ी भी से? कौन सा नया मसला खड़ा कर दिया? अरे भाई अभी काम से आकर खाना खाकर बैठा ही खा के बड़ी भी ने आवाज लगा दी कि मेरी दवाई तो ला कर दे दो। अच्छा तो मियाँ ऐसा लगता है कि आपकी वालिदा की तबीयत खराब है। ऐसी तो कोई खास बात नहीं, ये तो उनका रोज का मामला है। आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी खांसी तो कभी बुखार तो कभी नज़ला तो कभी सर में दर्द वगैरह वगैरह। थक गया हूँ मैं रोज अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते। एक तो महंगाई खत्म होने का नाम नहीं लेती और ऊपर से डॉक्टरों की आसमान छूती थी। जिंदगी गुजर गई इनकी हिम्मत करते करते और इनके खर्चे उठाते उठाते। बंदा अपनी मर्जी कहाँ जा सकता है ना सकता है, जान का आजाद बन गए। अजीब मुसीबत है, जाने कब जान छूटेगी इनसे। अरे भाई वो आपकी वालिदा है, वो आपकी अम्मी है और उनके बारे में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। माँ बाप की खिदमत करने पर तो दोनों जगह की कामयाबी मुनज़िर है। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इसलिए उनकी खिदमत से जी नहीं चुराना चाहिए। अरे मियाँ हमारे ऊपर उनके इस कदर एहसानात हैं जिनको शुमार नहीं किया जा सकता। अरे भाई किस चीज की उनका एहसाना? पौने 2 साल से परेशान हूँ, रात को टेंशन
परेशान हूँ, इस कदर परेशान हूँ कि अगर तुम मेरा जगह होते तो कसम घर छोड़ कर चले जाते। वो परेशान सा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफी देर से तुम्हारी बातें सुन रहा था, माफ करना, बर्दाश्त न हो सका तो दरमियान में हाजिर हो गया। लेकिन मियाँ, आपके गुफ्तगू से मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची है। आपको क्या तकलीफ हो गई? जरा बोले अभी। अरे मियाँ, आपकी गुफ्तगू से लगता है कि माँ बाप आपके लिए बोझ है। हालांकि तो माँ बाप का वो मकाम और मर्तबा रखा है कि जिनकी शान में कुरान ये इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ता'बुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। और तेरे रब ने हुक्म कर दिया, वजूद इसके किसी की इबादत मत करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक किया करो। अगर तेरे पास इनमें से एक या दोनों भी बुढ़ापे पे पहुंच जावे तो इनको उफ मत करना और न इनको झिड़कना और इनसे तू अदब से बात करना। आई मियाँ समझ में अल्लाह ने क्या फरमाया है, किसी भी हालत में माँ बाप को उफ करने की भी इजाजत नहीं है। जी हाँ, बात तो समझ में आ गई, लेकिन भाई मैं तो अपनी माँ की इतनी खिदमत की है कि हक अदा कर दिया। हमारे ऊपर कोई हक बाकी नहीं है। मियाँ, ये मुँह और मसूर की दाल, जरा सोच कर बोलो। तुम कहते हो कि अपनी माँ का हक अदा कर दिया। अरे मियाँ, सारी जिंदगी और जिंदगी का एक एक लम्हा भी खिदमत करने में लगा दोगे तब भी हक तो बहुत दूर की बात है। हक की भूख अदा नहीं कर सकते। भाई कैसे नहीं कर सकते? अच्छा तो जरा सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आकर अर्ज करता है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा बहुत बूढ़ी और कमज़ोर थी। मैं उनकी खिदमत करता था। एक बार उनके दिल में हज बैतुल्लाह का शौक़ पैदा हुआ, लेकिन वो इतनी कमज़ोर थी कि चल नहीं सकती थी। इसलिए मैंने अपनी वालिदा को टोकरे में बिठा कर पूरा हज कराया। जब मैं वापस आ रहा था तो मेरी वालिदा ने मुझसे कहा कि मुझे हाजत पेश आ रही है, और बस इतना ही कह पाई थी कि गलाजत और नजाजत टोकरे से निकलकर मेरे मुंह और बदन पर फैल गई। मेरा आका, मैंने ज़र्रा बराबर भी उसे बुरा नहीं समझा। मैंने अपनी वालिदा को पाको साफ किया, फिर अपने आप को। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैंने अपनी वालिदा का हक अदा कर दिया? जरा जल्दी बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अभी तुमने माँ का कुछ भी अदा नहीं किया। यार, इसलिए आपने अपनी वालिदा की पौने 2 साल खिदमत की है, कहाँ जाता रहे हो? जरा अल्लाह से डरो, माँ बाप की अजमत करो और मरते दम तक इनकी खिदमत को अपनी शहादत जानो और अल्लाह से दुआ करो कि जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझ पर मेहरबानी फरमाई, उसी तरह तू भाई इसी में उन पर मेहरबानी फरमा। बस कीजिए भाई, बस। बाकी आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो अपनी वालिदा के मकाम और उनके मर्तबे से बिल्कुल नाचना था। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, दोनों जहां में आपको कामयाबी से हमकिनार फरमाए। अरे भाई, अब तो आपके समझ में आ गया ना कि माँ का क्या मकाम और मर्तबा है और हम क्या सलूक उनके साथ करते हैं। कितने ही नादान आज ऐसे हैं जो बात बात पर अपनी माँ को गालियाँ देते हैं। कितने ही बदनसीब ऐसे हैं जो अपनी माँ पर हाथ उठाते हैं। ज़रा ये लोग सोचें कि अगर वालिदैन नाराज़ हो तो बड़ी से बड़ी इबादत भी अल्लाह के नज़दीक बेकार है। आपने बिल्कुल सच फरमाया। ये हकीकत है कि वालिदैन की रज़ामंदी में अल्लाह की रज़ा ही है। ये बातें आप गुजरात में गौर से सुनी। ये हम सब के लिए, जिनके माँ बाप उनसे नाराज है वो घर जाकर उनसे माफ़ी मांगे और मरते दम तक इनको खुश रखने की पूरी कोशिश करे।
When the British ruled India, they took what belonged to our country, India, and its people. The Indians suffered a lot because of this. To get back our freedom, our forefathers made many sacrifices and even went to jail. They were patriots. The patriots love, support, and serve the country. So, the central idea of this song is no one is superior or inferior, all are equal. So, with this great motion, our girls of Standard Foot Delta will present a song, Bangladesh ke Nivasi. Welcome them all. Warahmatullahi wabarakatuh. Peace, mercy, and blessings of Allah be on you. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल उनके माला में कहे, प्यारे प्यारे फूल उनके माला में कहे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक प्यारी कभी एक तेज न्यारी, कोयल की कूक प्यारी कभी एक तेज न्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। Among all the Indian concept of mutual understanding and unity. Amen. Now, the boys of Standard Third will perform a skit on impact of today's lifestyle. We don't have a choice on whether we do social media. The question is how well we do it. I am fed up of his college project. He is ignoring the project and he is wasting his time on Facebook. Oh, it's a problem. I have to complete my project. Let it be. I will complete it afterwards. First I am opening my Facebook and later on I will complete it. Come on, in my status. Come on, change my status. I'm inviting my new friends. Uploading new pictures. Oh, so nice picture it is. I'm uploading these pictures on my new friends. I like to invite new friends. Oh, it's too late.
complete my project also. No, I think I should go and sleep now. Bahar Abbu is fed up of his office work. He takes help of Google and he works till late night. Oh, this office work is really a headache. Let me use Google for completing my work. Show me what is latest condition of share market. Show me today's news. Oh, it's too late. Oh, it's 12. I have to go in office tomorrow. I should go and sleep now. Due to wasting time on Facebook by failing his exam. Why are you so sad? Papa, I'm failing exam. How you failed an exam? Don't so many books are available for you. Then also you failed. I'm really sorry. I don't know how I failed. Don't spend more time on Facebook. I don't want to hear this again. Okay, After a few days, they face health problems and they go visit doctors. May I come in, sir? Good morning, sir. Good morning to you too. Please, sir. Please tell me what is the problem, sir? I'm having a lot of headache and my eyes are watering. How much time do you spend on social media? Sir, using maybe 3 to 4 hours daily. What did you say? 3 to 4 hours daily? It's not good, my child. It's very bad for our health. Your headache, your eyes will become weak and you will get eye stress. Your headache is because of looking into the screen continuously. I'm giving you some medicine. Because of time, you start feeling better. Thank you, sir. Morning period to eat, my brother.
tell me what is the problem. I am getting lots of arguments and get distracted. I am not getting time for exercise and also losing my sleep. Do you spend more time on PC? Yes, I spend for 6 hours on PC. For 6 hours on PC? Why, my brother? It is my office work. Oh, I can understand you, my brother. But using social media for such a long time can cause headaches, eye stress, lack of sleep, and depression. I'm giving you some medicine. Stop using apps for such a long time. So life should start getting better. And always remember this that after coming from office, you shall have some rest and complete your sleep. Inshallah, you should start getting better. Thank you, sir. Social networking has its advantages like helping and homework, assignment, project, information, etc. But also has many disadvantages. Leads to unhealthy sleep pattern, depression to cause headache, and your eyes to pain and water. Social media brings both good and bad qualities into our lives. As a student, you must use it wisely to make education better and become smart students. And if you all want to live a happy and happy life, you must learn that social networking is useful somewhat, but sometimes a dangerous master. So we humbly request to all the families to spend more time with their families instead of social media. Then inshallah all the families will be